Hello, my dear friends in Nagpur. First of all, thank you so much for according such a warm welcome to me. And I am truly honored. And they say you have to be most alert in the best of the times when people praise you the most. Because never forget in life that the worst mistakes of life are made in the best of times. And whatever I have today, I believe the giver is the Almighty. We are what we are by the grace of God and the blessing of elders. I am not Rakesh Jhunjhunwala because I am Rakesh Jhunjhunwala. I am Rakesh Jhunjhunwala because he has chosen me to be Rakesh Jhunjhunwala. And all adjectives in life are temporary and transient. They may be here, they may not be here tomorrow. Success, wealth, fame, happiness, beauty, they are just fleeting past. So let's not get intoxicated by them. I must all tell the fair ladies that the stock market, if you want to know the stock market well, the men must understand women well. Because markets are like women. Always commanding, always mistress, always uncertain. Always volatile, always exciting. And I truly feel that, I'm not saying it to make you laugh, because see, you cannot have a good relationship with a woman by browbeating her, by bullying her. The only way you can have a good relationship with a woman is by accepting her, by following her, by respecting her, by learning from her. And the stock market is exactly like that. If you want to learn the market, see, the process to learn the market is a journey and not a destination. So the process of learning is continuous. But if you want to learn, you have to be humble. If anything goes wrong, you must realize that you have made a mistake. Market has not made a mistake. I think that humility is very, very important to understand markets. But markets are very peculiar. You cannot be taught markets. You have to learn markets. My mother teaches cooking to my cook, but I don't know, his dal is not as good as my mother's. So he has to learn by the process of learning again and again. What else can I say? I have all the time. I have a flight which I can take even at 12 o'clock in the night. So I have all the time. I can answer all your questions. Please feel free and frank to ask any question you want. Thank you. राकेश भाई साहब, सबसे पहला सवाल कि 5,000 रुपए से शुरू की हुई जर्नी आज हजारों करोड़ तक पहुंची है। आप मार्केट में आए कैसे? आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर के बेटे हैं। आप मार्केट में आए कैसे और ये जर्नी कैसी थी? देख शिवानी, हूँ तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर का बेटा, लेकिन हूँ मारवाड़ी अग्रवाल। तो व्यापार हमारे खून में है। और मेरे पिताजी को भी शेयर बाजार में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता था। तो जब मैं 12, 13, 14 साल का उम्र का था, तो उनके दोस्त आते थे शाम को, वो लोग डिस्कस करते थे। वो समय में सेंचुरी मिल्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ग्वालियर रेयन, टाटा स्टील, ये सब बड़ी कंपनियां फेवरेट कंपनीज थी। तो मैं हमेशा बहुत इंक्लूसिव बच्चा था। सो मैं मैं अपने फादर को बहुत क्वेश्चन पूछता था, ये टाटा स्टील का भाव क्यों बढ़ गया, सेंचुरी क्यों घट गया? तो वो बोलते थे, देख तू, वो टाइम पे कोई कंप्यूटर हुआ नहीं करता था, 12 से 2 बजा रहा करता था। हम तो पढ़ते थे, हमको भाव ये दिन का भाव नेक्स्ट डे ही मालूम पड़ता था। तो डैडी बोलते थे, देख आज पेपर पर देख ग्वालियर रेयन की खबर आई है ना, आज ग्वालियर रेयन का भाव बढ़ेगा या घटेगा, कल उसको चेक करना। तो मैं चेक करता था, फिर बैलेंस शीट पढ़ने लगा। तो उस उम्र में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, किसको पायलट बनना है, किसको गाड़ियों में इंटरेस्ट है। सब वो एज में लड़कों को सब लड़कियों में इंटरेस्ट रहता था, मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। तो मेरे फादर बहुत डेमोक्रेटिक फादर थे। वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई तेरे को जो करना है तू कर। ठीक है, मेरा एक बड़ा भाई था, उसको वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया था। मेरे फादर वो प्रैक्टिस करता था, तो बोला मेरे एक बेटे को प्रैक्टिस कराना चाहता था, वो कर रहा है, अब तेरे को जो करना है वो कर। तो बीकॉम हुई, तो मैं बोला मैं तो जाता हूँ शेयर बाजार। तो बोले शेयर बाजार कल कड़का हो गया वहां पे तो क्या करेगा, कोई नौकरी भी नहीं देगा, पहले सीए कर। तो मैंने सीए किया। तो मेरे सीए हुए तो डैडी बोले, अरे तू अभी क्या करेगा? मैं बोला डैडी शेयर बाजार जाऊंगा। शेयर बाजार में क्या करेगा? मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बोले इन्वेस्ट करेगा तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है? मेरे सामने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे कर दूंगा। आप समझे ना,
लेकिन उन्होंने कहा कि देख मेरे पास मुंबई में घर है, कुछ भी हुआ तो तू यहाँ रह सकता है, तू पढ़ा लिखा चार्टेड अकाउंटेंट है, आप समझे ना, तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी और बॉम्बे में घर रहे और नौकरी रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। बोले देख, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, बी फियरलेस, right, and may God bless you, for he is the only blesser. But one thing don't forget in life, you have my blessings but not any money from me. मेरी मम्मी ने बोला, हम तो मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली के थे, मम्मी ने बोला तू शेयर बाजार जाएगा तो उसे शादी कौन करेगा? मैं बोला मम्मी डरो मत, एक कम बहू रहेगी आपको तंग करने के लिए। फिर वो 5,000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार, पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे। तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो उसने मुझे उनके 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया, उस जमाने में ब्याज 12-13% मिलता था। मैं बोला मैं 18% ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए। तो पहले एक लेडी ने दिया, वो बोले सिक्योरिटी में, बोला सिक्योरिटी में तो मैं हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो बोली ठीक है मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपया दूंगा, पहले 1.25 लाख रुपया ले, उसके शेयर ले, वो शेयर मुझे सिक्योरिटी में दे, फिर 1.25 लाख और दे। तो मैंने वैसे चालू किया। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1985 की बात है, मैंने एक साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए, और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। तो ये तो भगवान ने, मतलब पिताजी एंकरेज नहीं करते थे, भाई के क्लाइंट नहीं रहते थे, तो मेरे को तो ये सब पैसा वैसा मिलने वाला नहीं था। फिर शादी हुई, 2-3 साल मंदे थे, फिर बहुत कहानी है। ऐसा हुआ के शेयर लिए, 25 रुपए में लिए थे मैंने, 65 का भाव हो गया 4 महीने में, 25 का 65। वो जो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे वो सब टाटा पावर के शेयर ले लिए, वो लिए थे 150 में, उनका भाव हो गया 1000, तो 2-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। फिर मधु रनवटे का एक बजट आया, उस हमारे शेयर बाजार में शेयर सब ऐसे शेयर ठोके कि मालूम नहीं कोई बॉक्सिंग मैच है, जो आए बोले बेच दो बेच दो। और मुझे एक लगता था कि वीपी सिंह थे ठाकुर, लेकिन व्यापारी आदमी थे। ही वॉज द मैन हु फर्स्ट एबॉलिश्ड एस्टेट ड्यूटी इन इंडिया, ब्रॉट डाउन द रेट्स ऑफ टैक्स टू 60%। तो मुझे लगता था बजट खराब नहीं आएगा, तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और आप बिलीव नहीं करें, बोलूं किसको, और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो एसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी, हमारे पास ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे। मेरी वाइफ ने मेरे को जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। तो मैंने जाके बस एक ही चीज की, रेखा को घर पहुंचा रात को 2 बजे, सब डिस्कस वगैरह करके मैंने बोला रेखा अपना एसी आ गया। और फिर भगवान ने साथ दिया, और हमने क्या किया, कभी गलत काम नहीं किया पैसा कमाने के लिए। हमारे डैडी क्या बोलते थे, ये शेयर बाजार है, यहाँ कोई बीवी के बांगड़ बेच के आता है, कोई बीवी को बेच के आता है, कभी किसकी हाई नहीं लेना चाहिए। तो वो दिन है और आज का दिन है, कभी मैं कोई शेयर को मैनिपुलेट करूं, इधर बेचूं उधर लूं, वो सब धंधे हमको आते ही नहीं है, आप समझे ना। और ना करने हैं तो आते हैं, लेकिन करने ही नहीं है। तो भगवान ने आज भगवान के बहुत शुक्र, क्या बोल सकते हैं कि आई हैव फार लेसर वेल्थ देन पीपल थिंक, बट फार 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 मोर देन आई नीड, बिकॉज वेल्थ ऑल्सो हैज अ पर्पस। क्या करूंगा पैसे का, बच्चे को 200-500 करोड़ दे दूंगा, उसके बाद इससे मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मरता हूं मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवाई और बहू करने वाले और बेटे और बेटी। आप समझे ना। तो खुश हूं, करता वो हूं जो मैं चाहता हूं। द वेल्थ अलाउज मी टू डू व्हाट आई वांट एंड आई लिव लाइफ बाय माय टर्म्स, एंड व्हाट एवर सक्सेस आई हैव हैड, आई थिंक पेशेंस, हार्ड वर्क, टेकिंग डिफीट विद अ स्माइल। मुझे बहुत बार नुकसान हुआ है जिंदगी में, बहुत बार सेटबैक लगा है, मैंने बहुत बार शेयर बेचे पैसा नुकसानी भरने के लिए, लेकिन एक बार हो गया। सी नेवर बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, ओनली मेक वन यू कैन अफोर्ड so that you may live to make another one, because if you are afraid to make a mistake you cannot take any decision in life. तो मुझे गलती होती है, मैंने कंपनी में पैसा लगाया A to Z,
150 करोड़ रुपया खोया उसमें। मैंने कभी उसके प्रमोटर से तेज बात नहीं की। मैंने बोला मैंने उसको परखने में गलती की। अपना डिसीजन के लिए अपने आप को ब्लेम करो, उससे सीखो और भूलो उसको। क्या बात है। हम लोग जब मार्केट में काम करते हैं या फिर एक सामान्य निवेशक जब मार्केट में काम करता है तो वो टिप्स पर काम करता है कि राकेश झुनझुनवाला ने क्या स्टॉक खरीदा वो खरीदेंगे, दमानी सर ने क्या खरीदा वो खरीदेंगे। व्हेन यू स्टार्टेड, आपने किसी की टिप पर कभी काम किया था? और नॉर्मली टिप्स और खबरों पर काम करना चाहिए क्या? वेल, टिप्स आर हार्डेस्ट और हेल्थ। और मेरी बीवी को नहीं मालूम है मैंने क्या दिया या बेचा, आपको क्या मालूम पड़ेगा? ऑल्दो आई डोंट माइंड एनीबडी, मैं तो बोल देता हूँ। देखिए क्या है कि पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो हिंदुस्तान में कोई भिखारी रहता? मतलब दमानी जी ने क्या लिया, मैंने क्या लिया, हम पहले 99% तो सब फॉल्स रहते हैं। लोग शेयर लेते हैं, लॉन्ग रूमर फैला देते हैं। और ये आई थिंक टिप्स आर वेरी वेरी इंजरियस टू हेल्थ। और दूसरी जी एक चीज ये, मैं कभी टिप देना नहीं चाहता हूं कि मैं आपको बोल दूं कि आप XYZ कंपनी ले लीजिए और कल कोई चीज बदल जाए जो आपको नहीं मालूम है या आपको जिसकी समझ नहीं है, मैं तो शेयर बेच दूंगा। क्या मैं नागपुर आऊंगा आपको बोलने? सो यू लिव इन सच अ डायनेमिक मार्केट, सच अ चेंजिंग मार्केट दैट आपको हर चीज इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ेगा। वो रिव्यू कौन करेगा? और मैं तो गाड़ी में शिवानी को बोल रहा था कि मेरी एडवाइस तो ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाइए। और मैं समझाता हूं आपको कि मुझे बुखार होता है तो मैं तो क्रोसिन ले लेता हूं। मेरी मम्मी और रेखा मेरी वाइफ को मालूम पड़े तो वो तो डॉक्टर को बुलाते हैं। वाई? बिकॉज माई मेडिसिन और माई हेल्थ नीड्स प्रोफेशनल एडवाइस। तो ये जो इन्वेस्टिंग है ये कोई इजी कार्यक्रम तो है नहीं। आप समझे ना, पैसे का मामला है, बहुत समझ चाहिए, बहुत फॉलो अप चाहिए। और आज 2-2.5% की फीस लेके कोई आपको देने को तैयार है, 1.5-2%। तो अब आप खुद क्यों उस काम खुद के डिसीजन या एबिलिटी से क्यों करें? बहुत जन करना चाहते हैं क्योंकि उनको शौक है। ठीक है, आपको शौक है तो 95% पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए ना, 5% खुद के लिए। या तो आप फुल टाइम इन्वेस्टर रहिए, पढ़िए, समझिए उसको, वो आप कर सकते हैं। एवरीबडी कैन ट्राई एंड बहुत कोई बैलेंस शीट समझने वाला ही अच्छा इन्वेस्टर हो ऐसा नहीं है। बट टिप्स आर ट्रेमेंडसली हैजार्डस फॉर हेल्थ। और दूसरी चीज मैंने निवेशकों में क्या देखा है कि मैं आपको कहानी समझाता हूँ। पहले मुझे विस्की पीने का बहुत शौक है, तो बॉम्बे में एक बार है मरीन होटल में जेफरीज, तो मैं वहां रोज जाता था। तो मैं आऊं वहां चालू क्या शू लागे छे, अभी शू लेवानू, शू वेचवानू। अरे मैं बोला अभी तो सब बेच के नहीं लेके आए, अभी जरा दारू पी रहा आराम करने दो। अब कोई प्रीटी औरत आए पूछने के लिए, उसको कैसे ना बोले? तो उसको बोलो XYZ शेयर ले लो। अच्छा कितना बढ़ेगा? मैं बोला 3 साल में डबल होएगा। बस खाली 3 साल में डबल? मैं बोला देख महालक्ष्मी रेसकोर्स का एड्रेस देता हूँ, वहां जाके घोड़े खेल। मतलब क्या है कि निवेशकों का एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये तो रेसकोर्स है, अरे 6 महीने में डबल होना चाहिए, 1 साल में ट्रेबल होना चाहिए। ये थोड़ा कोई रेसकोर्स है। जो एटीट्यूड ही है वो एटीट्यूड ये है कि कोई यहाँ गोल्ड जैकपॉट लगना चाहिए। और उस एटीट्यूड की वजह से लोग को ग्रीड आ जाती है, और ग्रीड आ जाती है तो कोई भी कुछ समझाता है, समझ लेते हैं, कर लेते हैं। इसके वजह एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई आपको बैंक में 7% 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उस पर टैक्स लगता है। शेयर बाजार में आपको 18% मिले, टैक्स फ्री मिलता है, तो 18% में आप किंग हो। तो बेसिकली देखिए, इतनी बड़ी सभा को आप बोलेंगे हम राकेश झुनझुनवाला से थोड़ा भी सुनने हैं कि 15-18% रिटर्न मिले हमको, लेकिन क्या करें, वो भी सच्चाई वो बोलना पड़ेगा ना कि सच्चाई यही है कि 18, 15 और 21% के बीच से ज्यादा रिटर्न आना बहुत मुश्किल है। और आप लोगों ने बहुतों ने खुद निवेशक, ये मत सोचिए मैं समझता हूं मैं बहुत शाना है होशियार हूं, खुद कोशिश करी होगी, लेकिन बहुत कमों ने कमाए हैं। तो एक होशियार आदमी को एक्सपीरियंस इज अ टीचर। आप समझे ना? आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर दिस और शिवानी, बट आई थिंक आई हैव टू से द ट्रुथ एंड दिस इज द ट्रुथ। बताइए।
that you need professional advice for investment. And tips are extremely, extremely hazardous for health. थैंक यू। अगला सवाल कि जो लोग टिप्स पर काम, मतलब आपने बताया टिप्स पर काम मत करिए, 95% म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, 5% स्टॉक मार्केट्स में लगाइए और मेक इट एज योर प्रोफेशन, फुल टाइम उसको डिवोट करिए। हाउ टू फुल टाइम स्टार्ट? प्रोफेशन है तो आप खुद लगाइए, हाँ, बट फुल टाइम प्रोफेशन के लिए भी सीखने के लिए टाइम लगता है। कैसे सीखे? देखिए, मैं अपने लिए समझता हूँ कि आई हैव मच 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 लर्नड, बहुत कुछ सीखा है मैंने, लेकिन जो सीखना मुझे अभी वो बहुत ज्यादा है। The quest to learn is a journey, not a destination. It's a very, very important thing. So, you cannot learn in a day. And you cannot learn by following anybody. एक चीज जिंदगी में मेरी प्रोग्रेस की मैं समझता हूँ कारण ये भी था कि आई एम वेरी डिफाइंड बाय नेचर। कोई कुछ बोल दे तो मैं मानता नहीं हूँ, मैं वही करूंगा जो मुझे जचता है। लेकिन मैं कैसे कर, बिकॉज आई कुड गेट सक्सेस, then only I could get confidence in my judgment. Then only I had the will to put according to my judgment. So to start in a small way, learn. So it's a very difficult journey. I'm not comparing myself to anybody, but it is, like being Rahul Dravid as a batsman. It's an extremely difficult task. 5 दिन टेस्ट में खड़े रहना। नहीं, उसको टेस्ट में नहीं, और सामने हेडली आके बॉल मारता है तो उसमें विकेट में जाता है कि तुम सिक्सर मारते हो। अभी की जो रैली चली थी, मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे, आपने कहा था कि ये मदर ऑफ ऑल बुल रैली होगी, तो अभी क्या सोचते हैं, क्योंकि मार्केट तो इतना टूट रहा है? देख, मैं आई स्टिल होल्ड, मैंने जो वो टाइम 214 में बोला और लिखा, उसमें मैं गलत हो गया हूँ, समय से एक्चुअल गलत हो गया हूँ। कि मैं समझता था कि 2015, 16, 17 में द मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स वुड हैव स्टार्टेड, बट आई स्टिल बिलीव दैट डिस्पाइट बीइंग रॉन्ग, द मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स इज स्टिल अहेड ऑफ अस। और उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान में मैंने अंडर एस्टिमेट किया कि देख, एक हिंदुस्तान हैज गॉट इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ स्किल्ड पीपल, अ डेमोक्रेसी, अ सेविंग्स रेट, and skilled people is what has made societies, right? Savings के बिना investment नहीं हो सकता है, investment के बिना growth नहीं हो सकता है। और अपन बेसिकली एक हिंदू नेशन है। एक हिंदू नेशन की जो अपनी सबसे बड़ी मार्क है इज टॉलरेंस। ये सब जो घर वापसी, ना इसको मार दिया ना उसको मार दिया, मैं बोलता हूँ देयर इज नो डाइवर्स सोसाइटी एज इंडिया। Which constitution in the world recognizes 29 languages? आप नागपुर में 100 विलेज जाओगे तो हर विलेज में चावल अलग तरीके से बनेगा। अपने खाने में क्या डाइवर्सिटी है, कपड़े में क्या डाइवर्सिटी है, एक दो इंस्टेंस। सो इंडिया इज अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया इज अ ग्रेट लैंड वेयर टॉलरेंस इज व्हाट वी आर। अपन क्या बोलते हैं कि सर्व धर्म एक है। You cannot be converted to Hinduism, you have to be born to Hinduism. Hinduism is not a religion, it's a way of life. It was Hinduism which first concerned for the environment. आपकी मम्मी, आपकी दादी खाना नहीं खाएगी, गांव ग्रास देगी। गांव ग्रास क्या है कि एनिमल्स को खाना खिलाओ फिर खाओ, उसका मतलब ये है। तो we are a tolerant, and what is the modern world? It is about tolerance, it is about change. It's only those who are tolerant who can change. So India has got skills, it's a democracy, it's got a savings rate, it's got that ability to imbibe change. So why India will not grow? India has vast natural resources. भगवान ऐसा नहीं करेगा कि खाली ऑयल, सऊदी अरेबिया की ऑयल सैंडफील्ड में देगा, रेगिस्तान में सऊदी अरेबिया में देगा और राजस्थान में नहीं देगा। We have not found it. So we have got everything that is needed for change. We are an America in the making, let me tell you. The question is the time. So, I underestimated the time it will take to bring about this change. Fadnavis साहब भी इतना काम कर रहे हैं to bring change, but look at the opposition is facing. आप देखिए सॉफ्टवेयर, जहाँ हिंदुस्तान के कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं, where we have reached. और इंडिया का मेन एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर, there is no competition to it. पढ़े लिखे इंजीनियर तो चाहिए अरे सॉफ्टवेयर का काम करने के। तो आई बिलीव
and I am an India bull. Not a stock market bull, an India bull. 1985 से मेरे को faith है this country will develop. And sir, we have developed. We have raised the base rate of growth in every decade since independence. Am I able to convey कि 1950 से 60 में अपन 3% ग्रो किए, 1960 से 70 में 4% ग्रो किए, 1960 से 80 में 5%, 2000 से 2010 में 7.5%. So we have grown, we have risen, we have raised our base level of growth in every decade. And India has got the most favorable demographics. डेमोग्राफिक्स आप समझते हैं कि जितने काम करने वाले हैं और कितने बुढ़े और बच्चे. आपने अमेरिका में बेबी बूमर्स के बारे में सुना होगा. वो जब एज था जब अमेरिका का मोस्ट फेवरेबल डेमोग्राफिक्स था 1950 से लेकर 1970 तक. वही टाइम है अमेरिका ने सबसे अच्छा ग्रो किया. तो इंडिया में ग्रोथ के सब इंग्रेडिएंट्स हैं. तो इंडिया क्यों नहीं ग्रो होगा? अपन आदमी को मार्स में भिजा रहे हैं, स्पेस में भिजा रहे हैं. हमने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, किससे चोरी करी नहीं, किससे चोरी करी नहीं टेक्नोलॉजी की, किसको एटॉमिक बॉम्ब बेचा नहीं. आप समझे ना? तो इस हिंदुस्तान को क्यों ग्रोथ नहीं आएगा? खाली ये नेहरू जी का सोशलिज्म नहीं रहता तो हिंदुस्तान आज अलग रहता. तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट. वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट. टू गेट रिड ऑफ इट अभी आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी चालू कर दी. अभी 1,10,000 करोड़ साला डालो यूरिया, मारो ग्राउंड. खेत भी खराब होता है. 1 लाख उसकी वजह आप इरिगेशन में डालो और इन्वेस्टमेंट करिए एग्रीकल्चर में. लेकिन पॉलिटिकल क्लास में कोई हु विल टेक दैट डिसीजन? बेल्जियम प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा बोला, आई नो व्हाट इज टू बी डन. मैं जानता हूं क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बाद मुझे इलेक्ट कौन करेगा? सो द क्वेश्चन इज हाउ इट इज टेकिंग इट. ऑल दिस विल चेंज, राइट? आप बताइए, आप एक देश बताइए दुनिया में मिड साइज नेशन जिसने 100 साल तक प्रॉस्पेरिटी देखी है विदाउट डेमोक्रेसी. वी हैव फुल डेमोक्रेसी. तो इस देश क्यों नहीं इस देश की प्रॉस्पेरिटी आएगी? अरे तुम सिंगापुर से कंपेयर कर रहे हो. तुम खाली बॉम्बे दे दो ना मुझे डेवलप करने के लिए. सिंगापुर का बाप बना के दिखाता हूं. वी आर कंट्री 150 बिलियन पीपल, 30 बिलियन पीपल. So why this nation will not develop? Only thing it is taking more time than we estimated. But India में क्या होता है? India biologically evolves. जैसे एक पेड़ उगता है ना, पेड़ बराबर टाइम से उगता है तो वो जीता है, बढ़ता है, बीच में नहीं खत्म हो जाता है. So that evolution in India is perfect. तो मुझे लगता है I am a bull because all earnings, all valuations, और ऑल स्टॉक प्राइस आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स. अर्निंग बढ़ेगी तो भाव बढ़ेगा. अर्निंग कब बढ़ेगी? जब इकोनॉमी बढ़ेगी. तो अब जैसे पहले सिस्टम था कि क्या है, पावर प्लांट है, 400 करोड़ का पावर प्लांट है, 600 करोड़ का बिल बनाओ, दिल्ली से परमिट लाओ, फिर कोल का परमिट लाओ, फिर बैंक से लोन लो. अभी वो सब खत्म होना पड़ेगा ना. लेकिन वो सब जो हो गया उसका पेन किसको तो लेना पड़ेगा. So to change all these things will take time. But I have no doubt the mother of all bull markets is ahead of us and not a distant head. मतलब पिताजी से पूछो ना धन कब दे रहे हो, तो देता हूं बेटा. तो मैंने बोला एक दिन पिताजी को, कब? बोले नहीं, बहुत दूर नहीं है, अभी पास ही है. तो ऐसा भी बुल मार्केट बहुत दूर नहीं है, पास है. इतनी सारी बातें की चीजें बदल रही है. मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आर यू हैप्पी टू सी हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग? Well, I think, but it was premature of us to expect that Mr. Modi could bring a change so fast. Two, we extrapolated Gujarat into Delhi. But I think both are different animals. So I think that he knows what has to be done. And he's doing what he can. But it's going to take time. It's not going to be as fast as we thought. Second thing I like most is, at least we have a government which is proud of this country. मतलब we are not, जनसंघ जब बनी थी तो जनसंघ ने बोला था कि हमको यूनाइटेड नेशंस असेंबली का मेंबर बनना है. There is pride for everything which is Indian.
आज योगा प्रमोट करने वाला तो कुछ आया? अमेरिका में भारतीय चीज सबसे बड़ी क्या है? सॉफ्टवेयर और योगा. सो अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक, देखिए इकोनॉमिक चेंज तो आएगा एंड इट विल बी फेल्ट मोर एज टाइम पासेस. बट जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, only thing I wish, I think Mr. Modi needs a lot of competent people around him who are well delegated. How about his cabinet ministry, who is performing good and मुझे क्या जेल में जाएगी क्या तुम? No comments. No comments. Everybody is trying to do his best. एक है कि इतनी बड़ी रेल है जो अब तक अनटच थी, रेल सेक्टर, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने की कगार पर है, आएगा. चीजें कैसे बदलेगी इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल आएगा. हिंदुस्तान में हर चीज में इन्वेस्टमेंट आएगा, बट आई डोंट एग्री विद द बुलेट ट्रेन. इंडिया डजंट नीड अ बुलेट ट्रेन. इंडिया फर्स्ट नीड्स ब्रॉड गेज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ट्रेन इन एवरी पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. Let us be free to say it. What is wrong? Just because Mr. Modi wants a bullet train doesn't mean we agree with it, right? Although I must staunch, मुझे कोई रात को उठा के 4 थप्पड़ देगा तो मैं नरेंद्र मोदी बोल के सो जाऊंगा. आप समझे ना? And see, he is doing his best. I don't think anybody has so much energy. He has raised the respect of India like anything abroad. राइट. और एक चीज पक्का है कि दुनिया हिंदुस्तान के दरवाजे पे खड़ी है पैसा लगाने को, लेकिन अपने को उस दरवाजे को कैसे खोल के उसके अंदर क्या दिखाना और कैसे लाना. वी नीड मोर स्पिरिटेड टीम वर्क इन दैट. ऐसा पैसा आएगा हिंदुस्तान में कि अपन बोलेंगे नहीं चाहिए अभी पैसा, और जाएंगे कहां? इनको 125 खाने वाले कहां मिलने वाले? कोई भी कंपनी को चॉकलेट बेचनी है, किसको बेचेगा? हर अमेरिकन 50 चॉकलेट रोज खाता है. 180 किलो का वजन है, उसको कितनी चॉकलेट? आई मीन दे आर कंज्यूमिंग सो मच. तो मेरे को लगता है बहुत 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 पैसा आएगा. और देखो, द फर्स्ट क्वालिटी इन्वेस्टर नीड्स, ही हैज टू बी एन ऑप्टिमिस्ट. अदरवाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू. आपने बीच में टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की बात करी थी. वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन व्हाट इंटॉलरेंस एंड टॉलरेंस जो इतना सारा बवाल चल रहा है? वेल, physical violence of any kind is intolerance, first of all, I like to say. But that doesn't mean that we should not have the right to propagate what we want, but that propagation cannot be anti-national or anti-constitutional. तो आई डोंट एग्री कि भाई कोई बोलता है कि किसने बीफ खाई तो उसकी डेथ मार दी. मालूम नहीं है पक्की बात क्या है. ओके, दैट्स रॉन्ग, बट आई हैव अ राइट टू प्रपोज बीफ. आई हैव अ राइट टू से दैट आई विल मेक अ मंदिर इन अयोध्या. आई हैव अ राइट टू से कि मैं क्यों नहीं घर वापसी कर सकता हूं. अगर हिंदू को मुसलमान बना सकते हो तो मैं मुसलमान को हिंदू नहीं बना सकता हूं. क्या गलती है उसमें? और अपन सब एलिटिस्ट पढ़े लिखे हिंदू चुप बैठते उसमें. नहीं, सोशली कोई पार्टी होगी, सूथ व्हाट्स हैपनिंग, घर वापसी. अरे ब्लडी कन्वर्टिंग आवर हिंदूज इनटू मुस्लिम्स. यू डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट? एंड व्हाई एज अ नेशन शुड बी अलाउ दैट? सो आज आप बताइए, कॉमन सिविल कोड क्या है? आज मेरी वाइफ की, आज मुझे रेखा को छोड़ना पड़े तो 100 बार कोर्ट में जाओ, आधा से ज्यादा धन दो, सब बच्चे दो, खुद रोड पे आ जाओ. और समझो मेरी साली है, उसने एक मुसलमान से शादी करी, बोले तलाक तलाक तलाक, बाय बाय. तो ये क्या मतलब है कि वाई शुड वी नॉट हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड? वी वांट अ मॉडर्न सिविल सोसाइटी. I have very strong views on this, right? And I support Hinduism. I don't go to the temple. I believe there is one God. We have to bow before Him. We don't know His name. My biggest gods are my father and mother. उनसे बड़ा भगवान नहीं है मेरे लिए. लेकिन ये बात पक्का है कि I cannot be a minority in my own country.
आज मुझे डांडिया नहीं खेलने देते 12 बजे के बाद। क्यों भाई? साल में 9 दिन बॉम्बे में डांडिया कौन खेलता है? सब जन खेलते हैं, क्रिश्चियन हो, सिंधी हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो। आज एक बार अलाउ करता है 12 बजे के बाद डांडिया। मुंबई में कुछ 9:30 बजे के पहले चालू ही नहीं होती, डांडिया ही मर गया। तो अब क्या करें? जो है वो सहना पड़ता है। फिर से वापस बाजार की ओर आते हैं। रुपए का डिवैल्यूएशन हो रहा है, 55, 60, 65, 75 तक जा चुका, फिर अब वापस 68 पे खड़ा है। एक थ्योरी बोलती है देश की कि और डिवैल्यूएट होना चाहिए, एक थ्योरी कहती है कि नहीं कम होना चाहिए। व्हाट इज योर कॉल ऑन इट? I think we should not interfere. We should leave the rupee to its own value. मतलब गवर्नमेंट को एक एडिक्वेट रिजर्व्स बना लेने चाहिए। अभी 350 बिलियन है, 400 450 बिलियन, एंड देन नॉट इंटरफेयर इन द वैल्यूएशन। जापान का आपको मालूम है 1982, 84, 85 में जापान की वैल्यू थी 375 येन टू द डॉलर। 2014 में वैल्यू थी 75 येन टू द डॉलर। कितना? 375 येन टू द डॉलर, 75 येन हो गए, मतलब 20% रह गई। एंड जापानीज एक्सपोर्ट्स वर अप। सो आई डोंट एग्री कि कांस्टेंट डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी is going to lead to growth in exports. What is going to lead to growth in exports is better infrastructure, better labor laws, better, better, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि smooth provision for business. So I don't agree ये devaluation करना चाहिए। ईज ऑफ बिजनेस पर क्या कहना है? और आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, whatever takes he is taking on economy, उस पर क्या कहना है? I think Raghuram Rajan is a very wise man, right? See, he is trying something very, very difficult, and if he achieves it, it will be a dream. कि इंडिया में इन्फ्लेशन 4-4.5% से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए 4, 4.5, 5 बजे, मतलब वो सिक्लिकली नहीं बट सिस्टमैटिकली इन्फ्लेशन की बैक ब्रेक करना चाहते हैं। सो आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज वेरी वेरी गुड। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल अचीव इट। But I think he's a tremendous governor. I think he's doing tremendously good for the banking system. नहीं तो बैंकों की ये बैलेंस शीट 100 साल बाहर नहीं आती थी और अंदर ही अंदर से इकोनॉमी को खा जाती थी। जापान में उन्होंने वही किया। 1990 में तकलीफ हुई, आज तक जापानीज बैंक्स की सच्ची बैलेंस शीट मालूम नहीं है। That's why Japan doesn't grow more than 2%. और अमेरिका में उन्होंने सब बैंकों की सब बैलेंस शीट 2008 में निकाली। और देखिए ईज डूइंग बिजनेस, वो दिल्ली में बोलने से और नीचे आने में टाइम लगेगा। एंड फॉर ईज इन डूइंग बिजनेस यू टू चेंज लॉज, स्पेशली लेबर लॉज, एटीट्यूड। तो इट्स अ गुड बिगनिंग। आई थिंक इवन इफ मोदी जी इज प्राइम मिनिस्टर फॉर 15 years, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल आउटलिव हिम। मतलब ये प्रोसेस है, धीरे 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 इसमें इसका इफेक्ट आते जाएगा धीरे धीरे। इमीडिएट मतलब इसमें मैजिक वॉन्ड नहीं एक दिन में हो जाएगा। बट इट इज गुड दैट द इनिशिएटिव हैज बीन टेकन फ्रॉम द टॉप। और आई थिंक सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट की मैं बोलना चाह दिया, मेरे फादर बोलते थे, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, कि करप्शन गॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आफ्टर 1970 बिकॉज देयर इट स्टार्टेड ऑन द टॉप। अब ये है कि मेरे को लगता है टॉप में करप्शन इज एज गुड एज नील, which makes a which to trickle down will take time. No corruption on the top, ease of doing business, change in method systems. I think that will change the corruption levels in this country. But all this is a process, sir. Don't get excited. It's going to take time. आपने अभी बैंकों के बारे में बोला। एक सवाल या फिर एक चर्चा हमेशा आती है कि जो बैंक्स अपनी बैलेंस शीट डिक्लेयर करती है, क्या वो सही में सही बैलेंस शीट होती है? और जो एनपीएस अभी आ रहा है 70,000 करोड़ जो हेल्प करने वाली है गवर्नमेंट, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, क्या वो होना चाहिए? अब वो टैक्स पेयर्स का पैसा है कि, लेकिन बैंक भी आपके और मेरे ही है ना। गवर्नमेंट पैसा आपका और मेरा सबका है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, मतलब आप और मैं ही ओन कर रहे हैं ना। तो अभी तक आंखें बंद थी, उसका क्या कर सकते हैं? वी हैव टू रिकैपिटलाइज द बैंक्स, बट दिस प्रोसेस मस्ट बी एनफोर्स्ड। कि मतलब ये कोई पावर प्लांट है, उसको बेचो। कोई पावर प्लांट है, उसमें 2,000 करोड़ की इक्विटी रखी है, 8,000 करोड़ के लोन है,
वो 7,000 करोड़ में बिकता है, उसको बेचो और बैंक को 1,000 का राइट ऑफ करो, 2,000 की इक्विटी राइट ऑफ करो और आगे चलो। मतलब वी कैन नॉट लेट दिस रॉट कंटिन्यू। और ऐसा नहीं है कि इस देश में ये प्रॉब्लम हुई है, अमेरिका में हुई है, स्वीडन में हुई है, हर जगह हुई है। बट द गोल्डन थिंग इज, मेरे को लगता है दिस मैटर विल गेट सॉल्व इन द नेक्स्ट 12 to 15 months, और उसके बाद ये बैंकों में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये पूरा जो कल्चर था ना कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ाओ, खुद के घर से कुछ पैसा मत लगाओ, सब बैंकों के भरोसे, ये कल्चर ही डेड हो जाएगा। तो बोलते हैं ना कि भाई कैंसर का पेशेंट है, उसको बहुत पेनफुल इंजेक्शन देते हैं, उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएगा उसके बाद। तो ऐसा जो बैंकों में हो रहा है वो वही हो रहा है। अभी तो पेन बहुत है, लेकिन ठीक हो जाएगी बैंक। सर, इसी को आगे लेते जाते हुए जितनी पिटाई बैंकिंग स्टॉक्स में हुई है अभी, और जो वैल्यूएशंस अभी है, स्पेशली यहाँ पे जितने निवेशक है सबके पास स्टेट बैंक तो जरूर होता है, और जब स्टेट बैंक ही इतना आधा हो जाए, आई मीन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, और उसके बाद आपने अभी जो कहा कि दिस ऑल कैंसर इज कमिंग आउट, so should we start looking at the banking sector in specific? Well, it depends on the specific bank, but I would like to wait because State Bank में 240 में लगता था कितना घटेगा, 200 में लगता था कितना घटेगा, 180 में लगता था कितना घटेगा। तो पूरी सच बाहर आने दीजिए ना, अपन 180 में नहीं 220 में लेंगे। स्टेट बैंक जब ठीक तरीके से चला जाएगा, बैड डेट्स की प्रॉब्लम खत्म होगी, तो स्टेट बैंक का भाव 400 होगा कि 600, यही पूछेंगे ना। तो अपन 180 में लेके 240 में लेके क्या फर्क पड़ने वाला है? लेट इट बी मोर क्लियर। दैट्स व्हाट माय पर्सनल स्ट्रेटजी एटलीस्ट इज। मैं अभी कोई बैंक के शेयर का हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं ठहरूंगा। बैंक एक थियरी बोलती है कि सारी पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। प्लीज, कल नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, अभी को। नो, बिकॉज is it the government's business to be in business? That is one policy of this BJP government which I Air India को अपने 40-50 हजार करोड़ रुपया दे दी, फिर भी नुकसान है। मतलब नुकसान, ये तो कोई ससुर जी बैठे हैं, कोई ससुर भी कभी होगा 40,000 करोड़ के बाद तो बोलेगा जवाई बच कर। और क्या होगा आपको बताओ, आप देखिए, बात बताता हूं आपको। आपने प्राइवेटाइज किया टेलीकॉम, एमटीएनएल बीएसएनएल का विकेट गया। आपने प्राइवेटाइज किया एयरलाइंस, एयर इंडिया का विकेट गया। अभी बेल की तैयारी हो रही है। सो वन बाय वन एसेंशियली द पीएसयूज आर ऑल इनएफिशिएंट एक्सेप्ट वेयर दे आर मोनोपोलीज। उनको आपने मोनोपोली दे दी तो कोल इंडिया को मजा है, उनको फ्री मिला है सब। सो द क्वेश्चन इज दैट इज इट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस? और मुझे कभी कभी अचंभा होता है कि बीजेपी जैसी राइटिस्ट पार्टीज को 342 सीट्स इन पार्लियामेंट रख के, और उसमें राज्यसभा का कोई हाथ नहीं है, ऑल फाइनेंस बिल्स, कि गवर्नमेंट को भी पब्लिक सेक्टर बेचना नहीं है। मतलब इज इट द गवर्नमेंट्स बिजनेस टू रन बिजनेस? होटल चलाएंगे, एयरलाइन चलाएंगे, व्हाई? एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी? कि पेट्रोल बेचिंग सबसे बड़े मोनोपोलिस्ट है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ऑयल इंडिया। इंडिया का 100% ऑयल बेचते हैं और रोज बैठ के भाव डिसाइड करते हैं, और कंपटीशन कमीशन सो रही है। सर, हिंदुस्तान में कंपटीशन कमीशन बनाया है ना कि मोनोपोलिस्ट नहीं होने चाहिए, ये चारों मिलकर भाव बनाते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? सो मैडम, आई थिंक आई मेड सम ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ ऑफ माई लाइफ इन पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स। मैंने 18 रुपए में लिया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 1200 में बेचा था 2007 में। 30 रुपए में बेमल लेके 1200 में बेचा था। वो शिपिंग कॉर्पोरेशन 20 रुपए में लेके 200 में बेचा था। बट अभी ये सब में भाव पीएसयू भगवान बचाए। I got it wrong in MTNL. I lost money. What was the story behind MTNL? मतलब वो तो इतना जाइंट निकला। आप क्या करते थे पहले? एमटीएनएल था खाली ना, हम लोग शेयर बाजार के अर्ली वो ना, क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइज स्टॉक एक्सचेंज, वो नहीं, वो कंप्यूटर में चालू हुआ तो एमटीएनएल की लैंडलाइन आती थी, बाजार का टाइम पे आके लाइन खराब करते हुए। वो बिहार का भैया आए,
सेठ 1000 रुपया दो नहीं तो लाइन नहीं चालू करने दूंगा, ये हालत थी. So, I mean, don't mind. I am a man of extreme views and extremely capitalist in my thinking. So because I thought MTN was such a large monopoly, and Bombay and Delhi and such large assets. अब क्यों दुख भरी कहानी याद दिलाता है. सर, एक इन्वेस्टमेंट साइकिल नाम की चीज होती है, हम अक्सर मार्केट में सुनते हैं, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर्स हो रहे हैं, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो लगता है अगला क्वार्टर अच्छा होगा, अगला क्वार्टर अच्छा होगा, लेकिन हर एक चीज फिर दुख भरी कहानी रिपीट हो जाती है. तो उसकी कहानी ये है कि नाउ डोंट बिलीव प्रोजेक्शंस एंड डोंट बिलीव प्रेडिक्शंस. आप समझे ना कि मैं रेखा को बोलूंगा आज मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, कल नहीं पीऊंगा, तो रेखा 10 दिन के बाद बोलती है आप जिस दिन नहीं पियोगे उस दिन नेक्स्ट डे बोल लो. So question is that let us not believe predictions, but I believe पहले 14 में थोड़ा एक्सपेंशन होने वाला था तो 15 को कर दिया, 15 का 16 कर दिया, अभी 16 का 17 करते हैं, लेकिन मुझे लगता है 17 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आना चाहिए अर्निंग्स में. And nobody anticipated this kind of commodity cycle. दमानी सर एविएशन पर बहुत ज्यादा बुलिश थे, कौन से सेक्टर्स पर आप बुलिश हैं, हाउ टू लुक एट सेक्टर्स? देखो क्या है शिवानी, ये बुफे है, यहाँ बहुत सारी डिशेस है, और ऐसा भी है कि ये स्टार्टर है, ये सूप है, ये रोटियां है, ये डेजर्ट है, ये सब सेक्टर है. जो पसंद है वो खाओ, ज्यादा मत खा लेना, बेहजमी हो जाएगी. क्योंकि सेक्टर तो क्या है, अब इंडेक्स लो ना, बेस्ट है, तेजी लगती है. हिंदुस्तान में अभी क्या बोलूं, आई डोंट वांट टू टॉक पब्लिकली, क्योंकि मैंने आपको बोला आज मैं लेक्चर दे दूंगा, कल मैं जाऊंगा, मैं तो और कुछ कर दूंगा, से भी पहले केस ठुकेगी मेरे ऊपर कि यू गिव एडवोकेट पब्लिकली दैट यू शुड बाय एंड 1 month लेटर यू सोल्ड योर शेयर्स, राइट. सिक्स बात ये कुछ चेंज हो जाएगा तो मैं तो नहीं आऊंगा ना, फोन नहीं, ए शिवानी देख मैंने बोला वो लेने के लिए बेच रहा हूं मैं, तो बेच दे जरा, करने वाला नहीं हूं. बट इन जनरल आई फील, see the sectors which are pharma will do well, I think. I also feel if you can find good stocks in infrastructure, and there are very very few good stocks, they will do well. Manufacturing में भी certain companies should do well. और तो क्या बोलूं, ये सब तो लियो फिर. कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, I think I will still take time. It depends, capital goods is a very vast एरिया, पर मेरे को लगता है इंडिया का कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल रियली रिवाइव होने के लिए अभी भी 1.5-2 साल लगेगा. और पहले ये बैंकों का लफड़ा खत्म होना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है और तरीके इन्वेस्टमेंट के लिए लाने पड़ेंगे. आज प्रॉब्लम क्या है कि सीमेंट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% है, उसमें 50 मिलियन टन कैपेसिटी में साले बैंकों का पैसा नहीं दिए, वो सब कैपेसिटी बिकने को आएगी, तो नई कैपेसिटी लगाए कौन? So I think it will take time. ई-कॉमर्स पर आपका एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चर्चा में था पिछले कुछ दिनों में, ई-कॉमर्स पर क्या कहना? Well, e-commerce growth will be more than projected, but who will be profitable, I don't know. And how the path to profitability, और ये तो एयर इंडिया के ससुर तो छोड़ो, इनके तो ससुर और भी अलग है. बोला चेक लिखते ही जाते हैं, वो तो अभी अंडे का भाव 1 रुपया है, आप अंडा 80 पैसे में बेचना चालू कर दोगे तो आपके तो अंडे बिकते जाएंगे ना. और वो बोले 80 में बिके, मेरे को ज्यादा अंडे बेचने, 75 पैसे में और बिकेगा, चलो मैं 75 पैसे में बेचता हूं. सो देयर इज नो इकोनॉमिक सेंस. सेकेंड थिंग इज, सी देयर पार्ट टू आप देखेंगे इन द लास्ट 50 years की हिस्ट्री में तो 2 सबसे बड़े रिटेलर जो हुए वो ज़ारा और वॉलमार्ट. बट दे आर नॉट बिल्ट with the investors' money, they are built with the money of the profits of that business. ना तो नफा और इन्वेस्टमेंट कब तक गांव ऐसे लगाती जाएगा. तो आई थिंक बी अवे, स्टे अवे. जिसने कमाया उसको बोलो गुड लक, वी डोंट हैव टू गो टू एवरी पार्टी. सर इसी टॉपिक को स्पेसिफिकली आपका स्टेटमेंट जो शिवानी ने रेफर किया वाज
कि you will अभी Flipkart if it's at 15 billion you will be interested if it is 1 million. So आपने 50, I mean something like that. I said if I had appeared in a public meeting with Sachin Bansal, Yes. तो मैंने बेचारे को बहुत सुनाया ये सब कुछ होने वाला नहीं है, तो घबरा गया। तो बोला सचिन तू 100 मिलियन का वैल्यूएशन में आता तो शायद मैं लगाता था। 100. तो इधर वैल्यूएशन नहीं है, पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, अभी ससुर जी कितने दिन तक पैसा देंगे वो मालूम नहीं है। सो देयरफॉर एवरीथिंग इज अनसर्टन। मैं नहीं बोलता हूँ कल वैल्यूएशन 30 बिलियन हो सकता है, बट एज सर्कमस्टेंसेस स्टैंड आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क। So sir, इसका collateral damage क्या होगा if the startup bubble bursts and if the, I mean, is there, you have said it's a bubble. If it bursts, what will happen to the other stocks and listed stocks? or something? लिस्टेड स्टॉक को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी तो इमोशनल डैमेज होगी, क्योंकि आज हिंदुस्तान में 40-50 हजार 25, 20, 25, 27, 28 साल के लड़का लड़की जो अपने कॉज में बिलीव करते हैं, उनकी इतनी इमोशंस इन्वॉल्व है। जैसे बहुत कंपनियां बंद हो रही हैं, तो दे विल रियलाइज व्हेन दे कम टू टर्म्स कि भाई ये नहीं है, फंडिंग नहीं है, आप समझे ना, इमोशनली दे विल गेट सच अ बिग सेटबैक। और भाई साहब, इनोवेशन डजंट कम इन महिंद्रा एंड टाटा एंड रिलायंस। जब वो स्टार्टअप चालू करते हैं आपको खेल खत्म हो गया है। और ये स्टार्टअप्स में क्या मतलब, आपकी डेली लाइफ में स्टार्टअप्स का क्या फर्क पड़ा है, मैं पूछना चाहता हूं। कुछ फर्क पड़ा है कि मे बी वो मोबाइल फोन 40,000 का 39,000 में हो सकता है, या आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए फ्लिपकार्ट में क्लिक मारो और खुश रहो 6 दिन की मैंने खरीदा है, जब आए तो बोले भगा दो मेरे को नहीं चाहिए। 6 दिन खुश तो हो सकता हूं, और क्या फर्क पड़ा है। तो मेरा लगता है स्टार्टअप इज वन बिग, I don't believe it's what is going to make a big difference to India's economic growth or be very important innovation in India. इंडिया में स्टार्टअप्स का दौर चल रहा है, लेकिन चाइना के क्राइसिस है, यूरोप की अलग कहानी है, अमेरिका कुछ और। चाइना में कोई क्राइसिस नहीं है। I don't understand what is the crisis in China. जो ग्रोथ 10% था वो 9%, वो 8%, वो 7% होना ही था एक दिन, पर 60% ग्रोथ कम है। चाइना में रिटेल ग्रोथ इज 11% ईयर। रोड बना रहे हैं, आप लोग हांगकांग गए, हांगकांग से मकाओ, अरे सुपर फास्ट फेरी में 1 घंटा लगता है। रोड बना रहे हैं हांगकांग टू मकाओ, 6 महीने में चालू हो जाएगी। तो ये सब चाइना क्राइसिस, आई थिंक देयर इज नो क्राइसिस इन चाइना। हाँ, देयर इज क्राइसिस इन सर्टेन इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज ओवर कैपेसिटी। तो मेरे को नहीं लगता, इसीलिए आप जो देख रहे हो ना कि पूरे दुनिया के बाजार लास्ट 4-5 दिन में स्टेबलाइज हुए, तो बड़े हौवे में है कि चाइना ये हो जाएगा। चाइना ने तो डीवैल्यू ही नहीं किया। आपको मालूम है 5 साल पहले द वैल्यू ऑफ द yuan to the rupee was 6.5 rupees, right? Today it is 10 rupees 50 paise. How much the rupee has depreciated against the yuan? So China has not done, it has done a minor depreciation. So I can be wrong, I personally believe China में ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, और कोई यूरोप में तो पहले से ही प्रॉब्लम है, अमेरिका में कोई क्राइसिस नहीं है। अब न्यूयॉर्क जाओ, ऐसा लगता है कि आप बूम इन। इंडियन इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेल, इंडियन इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा ही। एक तो देखिए अपने एक्सपोर्ट्स इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि लॉट ऑफ जो पेट्रोल था, वो पेट्रोल आता था $80 बैरल में, जाता था $85 बैरल में प्रोसेस होके, अब आता है $30 में और जाता है $32 में। सो प्राइसेस ऑफ लॉट ऑफ कमोडिटीज हैव कम डाउन एंड इंडिया इज अफेक्टेड, but the effect is not as severe as people are making it out to be. Or the worldwide, the IMF is predicting that the world will grow higher this year than last year. सर, ये जो आपने कहा कि वैल्यूएशन, आपने द ऑयल प्राइसेस 30-32 वाला एग्जांपल दिया, will it mean we are generally moving towards a lower inflation regime? And if that is going to happen, should we expect the kind of returns which Sensex has delivered? 17-18 expectation सही रहेगा going forward कि we should come to inflation plus 4-5 real? नहीं, मेरे को लगता है if say I think I am hopeful
that for the next decade India should grow at least 8.5% real. If we grow 8.5%, I think India में 5.5% inflation रहेगा ही, तो 14% हो गया. And profit growth in India should be 1.5 times, 1.4 to 1.5 times. तो मेरे को लगता है कि सेंसेक्स और निफ्टी ने 2003 to 2008 एक बहुत डिसप्रपोर्शनेट रिटर्न दिया. फिर 2008 में 6,300 होके आज 2016 में भी तो जब भी ये ग्लोबल ये ग्रोथ का फेज आएगा रियल साल भर बाद 2 साल बाद, तो फॉर 5-6 years आई थिंक यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न लाइक 2003 to 2008. और एक दूसरा इंडिकेटर होते हैं परसेंटेज ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी. I don't know whether you understand that if you take the profit of all companies of India, how much it is as percentage of GDP. It went from some 5% to 8.5%, 5% in 2003 to 8.5% in 2008. And now it's back to 4.9%. तो वो भी बढ़ेगा. तो भैया इसीलिए बोलते हैं तेजी आएगी, तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुंह काला. तो तेजी आएगी तो things will be far more bullish than what we can imagine. आएगी जब will far more bullish than what we can imagine today. सर अभी जो फिलहाल तो हम मंदी में है, आई मीन टेक्निकली पीपल विल बी वेरिंग ऑन द डेफिनेशन. आपके व्यू में जो होना था वो हो गया कि और दुख बचा है? वैल्यूएशंस वाइज हैव वी कॉम्प्रेस्ड इनफ और एक पैनिक सेलिंग या समथिंग इज देयर? ये दो अनसर्टन इवेंट्स हैं and which I think in my judgment will be in favor of India. One is we should have a good monsoon. अभी तक हिंदुस्तान में ऐसा हुआ नहीं है कि 3 consecutive monsoon अच्छे नहीं थे. And the last monsoon was really bad. Right? दूसरा इंटरनेशनली कोई चीज अनप्लेजेंट नहीं होनी चाहिए, which is in my opinion नहीं होगी. And I go by my opinions, I reserve the right to be wrong. तो वो तो नहीं होगा तो मेरे को लगता है अपना जो ये 6830-40 अभी हुआ था, it's a bottom. और मेरे को लगता है शॉर्ट रन में भी 7,500 7,700 तक बाजार शायद खेलेगा. 7,000 to 7,500 बेस बनाएगा, समय बिताएगा, फिर निकलेगा. एक आपने अभी प्रॉफिट टू जीडीपी का रेशियो का जिक्र किया, मार्केट कैप टू जीडीपी भी बहुत लोग फॉलो करते हैं. डू यू फॉलो? वेल इट इज एन इंडिकेटर. एट द मोमेंट इट्स 0.6 0.7, इट हैड गॉन टू 1. So market has rebounded from these levels generally. मतलब 1.2 पे टॉप होता है, 0.6 0.7 पे बॉटम बनता है. एक कि आने वाले जब ये जो मंदी का दौर चल रहा है, एम कैप टू जीडीपी, प्रॉफिट टू जीडीपी, मार्केट अभी और नीचे कितना आएगा? बात ऐसी है कि रेखा को फोन नहीं करो, लेट आओ, तो मालूम है डांट पड़ने वाली है. अब डांट कितनी पड़ेगी वो तो रेखा के मूड पे है. तो अभी हम डायरेक्शन बता सकते हैं, अभी कितना बढ़ेगा ना कितना घटेगा, तो मैं भगवान ही होता था. हियर आई मस्ट इंटरप्ट वन थिंग कि सर की कंपनी का नाम रेयर एंटरप्राइजेस है, हम सबको पता है. इट इज वेरी रेयर कि राकेश झुनझुनवाला सर कम्स टू नागपुर, पर आज सर और मैडम दोनों नागपुर में आए हैं. सो रेयर एंटरप्राइजेस के राकेश और रेखा दोनों यहाँ पे है. सो सर टॉकिंग ऑफ वेरियस सेक्टर्स, आपने जब भी ये मंदी खत्म होगी, जब भी ये तेजी होगी, विच आर द सेक्टर्स विच यू फील विल लीड? बिकॉज आपने पहले कहा था कि पुराने रैली के सेक्टर्स कभी वापस लीड नहीं करेंगे. सो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें निवेशकों ने ध्यान देना चाहिए? सब चीज बढ़ेगी. इनिशियल बुल मार्केट में गधा ना घोड़ा. आपको लगता है अभी बाजार में एकदम तेजी होने वाली है तो इना मीना माइना मो म्यूचुअल फंड में डालो, 5% इना मीना माइना मो करो, ले लो, ज्यादा रिसर्च मत करो. ऐसा बहुत सेक्टर्स बोलना बहुत मुश्किल है. एक्चुअली नो मोर देन सेक्टर्स में लगता है कंपनीज में प्ले अ वेरी बिग रोल. सो मैं कोई कंपनी का नाम सर आप नाम नहीं इसीलिए सेक्टर्स नहीं, वो सेक्टर एवरीथिंग इज गोइंग टू बेनिफिट. Look for good companies. That is the truth. And look for character of the promoters. That is most important. How to look good company? पहले काम करता हूँ मैं, यहाँ आके तेरा क्लास लेता हूँ एक बार. That's a very big topic really to answer it. माइक पर बोल दीजिए यही. It's a very very difficult topic. मैं भी ढूंढता हूँ रोज. लोग मुझे समझते हैं नया टाइटन चाहिए. मैं बोलता ढूंढ रहा हूँ, मैं भी मिलेगा तो फोन करता हूँ.
look at so many things. Opportunity. I mean, I say, क्या होता है? You look at the opportunity for a company. Opportunity मतलब आज कोई होटल, आज कोई नागपुर में 5-स्टार होटल बनाए और बॉम्बे में 5-स्टार होटल बनाए, तो बॉम्बे में तो 5-स्टार होटल की डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है, राइट? सो व्हाट इज, जैसे कॉलगेट है, व्हाट इज द एग्रीगेट पॉसिबिलिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉलगेट टूथपेस्ट? हाउ इज इट लिंक? इंडिया प्रॉस्पर करती है तो आदमी जैसा पैसा कमाता है सबसे पहले टूथपेस्ट अच्छा यूज करते हैं. So how many people are get above the poverty line every year? So we look at demand. You know, Infosys would not have been Infosys if the internet had not come. But nobody knew about the internet. But that is what led it led for the demand, and consequently for the opportunity of Infosys services went through the roof. Then in a capitalist society, you look at competitive ability. भाई किसको कैपिटल का स्ट्रेंथ है, किसको ब्रांड का स्ट्रेंथ है, किसको मार्केटिंग का स्ट्रेंथ है, किसको मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रेंथ है, किसको टेक्नोलॉजी का स्ट्रेंथ है. सो कंपनी मस्ट हैव सम स्ट्रेंथ. एंड देन आई कॉल घी. कैश कितना जनरेट करती है, डेटर कितने दिन के, क्रेडिटर कितने दिन के हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है फॉर सेल. एंड देन आई लुक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट. वेरी डिफिकल्ट टू जज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज what you buy, but more important is at what price you buy. You can buy any junk at any price. मैंने 2 रुपए में शेयर लेकर 8 रुपए में बेचे. मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स 40 रुपए में लिया था. सब बोले चोर है, विजय मान लिया तो कुछ नहीं कमाएगा. आज वो 2400 वो शेयर का भाव पड़ता है कुछ 24,000 in 17 years. तो it's important what you buy. It's more important what price you buy. That's a very short summary I can give. I don't want to talk anymore. ठीक है. सर आपने अभी जो बात किया उसमें आपने कोलगेट का नाम ले लिया, तो सर ये an example. हाँ सर, तो इसी के आगे जाते हुए how will Patanjali affect the FMCG sector, which is a big Well, that's a very big question mark, and I'm very happy that somebody with an Indian product, unique marketing, very low ad spends, very low overheads, is, attacking the multinationals who are worldwide leaders. Only thing I have one fear in Patanjali. See, I am most fearful and most alert when a person is very, very successful. वो कंपनी की EBITDA रेशियो 30% होती है ना, मैं बहुत कह रहा हूँ, बोले 30% देता कौन है, कोई क्यों देता है? तो पतंजलि में grow too fast, and growing too fast may make unnecessary mistakes. So what is important is Patanjali must make planned growth. He's going to affect all the multinationals because he's competitive, and we are lot of us want to use Indian products. उसका घी बहुत पॉपुलर हो गया है और सब समझते हैं कि योगा सिखाता है तो उसकी हर प्रोडक्ट हेल्दी है. एक्चुअली बोले घी भी हेल्दी है, ये तो योगा वाले का है. आपने कहा कि कब खरीदना और कब बेचना इंपॉर्टेंट होता है. हर्षद मेहता के समय पर हाउ यू टैकल द मार्केट? अरे वेल, मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के. बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच के, बिकॉज वी न्यू इट वाज फ्रॉड मनी. और पहले बेचा फिर काटा, बिकॉज इतना पैसा है और वैल्यूएशन वाज अनबिलीवेबल. मतलब आप समझेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एनएवी ओपन क्लोज एंडेड फंड लिस्टेड 52 रुपया, लिस्टेड प्राइस 160. हमने शॉर्ट मार दिया, नेक्स्ट डे बहुत 240. तो मैंने तो क्या किया, मेरा पोर्टफोलियो था समझो 40 करोड़ का, मैं बोला 40 करोड़ के शेयर बेच दो, कुछ भी स्टेट बैंक की, और समझो वो 40 का 50 हो तो अपन 10 करोड़ के शेयर बेचो और हवालन करो. You understand? Because if the market goes up, even my portfolio will go up. So what I do is that I sell shares worth say 10 rupees. If the market goes up, the 10 becomes 12. My portfolio also becomes 12. So I sell 12 and I sell 12 too and pay the difference. और जब घटना चालू हुआ तो हमने तो बोला भाई we really, and because 100 रुपए में लिया था मेरे दोस्त ने एसएससी, 100 रुपए में उसके अंडर 3 साल पहले उसकी राइट इश्यू अंडर सब्सक्राइब हुई थी और उसने वो एसएससी 10,100 रुपए में बेचा.
वो 100 रुपए वाला एसीसी, ऐसा क्या एसीसी सोना बनाती थी? वो एक मेरा दोस्त था, मैंने बोला दोस्त मैं तो टाटा टी के शेयर ले लिए, बहुत घबराहट लगता है, फंडामेंटली तो 80 का पी है। बोले राकेश सब फंडा का मेंटल है, क्या बात करें, आप समझे ना? सो आई बिकॉज सी वी हैव टू सी द मार्केट विथ रियलिटी, वी डोंट हैव टू जॉइन एवरी पार्टी। कि कोई लोग कैसे बिलीव करते हैं, आपको कोई आके बोलता है अरशद भाई ले छे तुम्हें भी ले 3200 में बोलता है वो, आप 3600 तक नहीं लेते हो, आप 3800 में लेते हो, बहुत 4400 आप दो दोस्त को बोलते हो ए सूचे ले ले एसीसी, अरशद भाई बोले 5000। बट यू हैव टू सी व्हाट द रियलिटी इज, नो मार्केट अल्टीमेटली गो ऑन रियलिटी। वो हिमाचल ग्लोबल, अभी गोल्डमैन सैक्स जैसे 3,000 4,000 में बाई रिपोर्ट निकलते। सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द व्हीट एंड द शैफ। सर आपने अभी शॉर्टिंग की बात करी, शुड वी गो इन फॉर दैट? आई मीन Well, I advise none of you all to trade. मैं बोलता हूँ 10 लाख आते हैं ट्रेड करने को, 9,99,000 आपको बोलते हैं कि हमने कमाया, 1,000 बोलते हैं हम खोए, 9,98,900 झूठ बोल रहे हैं, सब खोते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ ट्रेड मत करो, और आप बोलेंगे आप तो मंच पे बैठे हो खुद सट्टे में कमाया, हमको बोलते नहीं करो। मैं बोले पिताजी विस्की पीते थे, हमको मना करते थे। तो इसलिए क्या है कि दैट ट्रेडिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। भाई साहब सब कमाए, हिंदुस्तान में सबको धन हो, मेरी तो रोज प्रार्थना रहती। बट सच्चाई, और ये सच्चाई हमने देखी आंखों से, किसको आपने किसको मेरे फ्रेंड के बेटे से दुश्मनी निकालनी है तो उसको मैं बुला लूंगा शेयर बाजार में सट्टा करने को। संक्षिप्त में अगर नए निवेशकों को कुछ आप सजेस्ट करना चाहे कि मार्केट में आते वक्त ये चीजें करिए, ये चीजें ना करिए, तो आप व्हाट वुड यू? फर्स्ट थिंग इज बिलीव मार्केट इज सुप्रीम, ऑलवेज बिलीव मार्केट इज सुप्रीम। बाजार भगवान है, हम कतरदान है। भगवान और भाव भगवान है, बाजार और भाव भगवान है, हम कतरदान है। So otherwise, if you don't believe that, you'll never be humble enough to admit your mistake. And if you don't admit your mistake, you'll never learn from it. And if you don't learn from your mistakes, you will never learn. Second thing I think is that read, observe. Don't be clone of anybody. Have your own opinion. Have it after giving due consideration. If you want to invest or trade, know what to stake and know when to take a loss. ये पिताजी का पैसा ना ससुर जी का पैसा के भरोसे कभी कुछ करने का नहीं। और तो क्या बोलूं, और सबसे बड़ी उसकी ब्लेसिंग मांगने का, उसका हाथ आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि बैठे रहो भगवान मेरे को धन दे, मेहनत करो, सही काम करो, right? But always ask for His grace and blessings. Sorry, I'm sounding like a professor, but that's what life is. इसके पश्चात हम लोग पब्लिक में से सवाल लेंगे। वॉलंटियर्स है जो अपने हाथ उठाइए, वॉलंटियर्स आप तक पहुंचेंगे। इसके पहले कि हम पब्लिक से सवाल ले, 2 सूचनाएं देनी थी। मनीबी इंस्टीट्यूट निःशुल्क कार्यशाला चलाता है। जो भी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में, मतलब राकेश भाई के सामने ये बोलना कि स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है और हम सिखाएंगे, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। निःशुल्क कार्यशाला 5 दिन की मनी भी चलाता है। जो लोग अपना नाम लिखाना चाहते हैं काउंटर पर लिखाइए, ये कंप्लीटली निःशुल्क है। 2 बैचेस फुल हो चुकी है, अगली बैचेस के बारे में आपको हमारी तरफ से हम लोग इत्तला कर देंगे। और 29 फरवरी को जब बजट आएगा तो बजट का एकमात्र सेशन जो पूरे साल भरे में मनीबी इंस्टीट्यूट शुल्क लेकर करता है, उसकी 100 रुपए टिकट है। बजट आने के बाद सिर्फ बजट कैसे पढ़े, मतलब बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इसके आगे भी बजट क्या होता है उस पर हम लोग गौर करेंगे। काउंटर पर टिकट्स है, वो भी आप खरीद सकते हैं। इसके बाद सवाल। थँक्यू सोले सर, तुम्ही वेळ काढून आलात, खूप खूप आभार। प्रश्न हात वर करा, प्रश्न घेतील। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। Sir, welcome to Nagpur. First of all, myself Akhil Agrawal.
सर आपके हिसाब से 2019 में एनडीए गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सेंसेक्स को कहाँ देखना चाहोगे, कितने पॉइंट पर देखना चाहोगे? बोलते हैं ना, विशेस वर हॉर्सेस, बेगर्स वुड बी राइडर्स। तो मेरे को क्या है, होना चाहिए 35,000 40,000, मैं तो चाहूँ 50,000 होना चाहिए, लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा यार, ये चाहने से नहीं होता है। तू चाहेगा ऐश्वर्या राय से शादी कर दूं तो हो जाएगी क्या? अगला सवाल इस तरफ से। हेलो सर, मेरा नाम नीरजा कार्तिक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज मैं अपने कम से कम 70-80 स्टूडेंट्स के साथ यहाँ बैठी हूँ जिनको मैं पढ़ाती हूँ। मेरा सवाल है कि क्या आपका जो फॉर्मल एजुकेशन है, ये प्योरली इनके लिए है कि आपके फॉर्मल एजुकेशन ने क्या आपकी मदद करी? Does it help? Should I trust somebody who has, like you said, a professional? Your name is Nirja, no? Yes, sir. See, Nirja, first of all, I want to tell you, we are all shattered accountants. Because we are shattered by the time we are chartered. Yes, I agree. Second thing I tell you, my formal education has really helped me. See, I'll tell you, I told you about Madhu Dhanvate's budget. I'll give you an example. You know, people started talking all crap. How do you judge it? They said the center will levy a tax on private education. Which means that if my son goes to Cathedral School in Bombay, I will be made to pay a tax of say 20 rupees a month. Right? Now, if you are educated and in chartered accountancy, you study law. Under the constitution, education is a state subject. The center cannot levy tax on it, at least on schools. Right? Do you think a minority government is going to amend the constitution to get 25 crores of revenue? Which means people are talking out of their hat. Right? When people are talking out of their hat, bearish means sooner or later there will be bullishness. When you're talking out of your hat about bullishness, sooner or later there will be bearishness. So, having the knowledge that education is a state subject allows me to judge that people are talking bullshit. So I think, at least for me, my formal education has really helped me. And more than the judgment of markets, it has helped give me a personality. It has given me the gift of the gab. I can go in a public gathering and talk. So I think a formal education is extremely important. Second, also it is extremely important for security. Just as my father explained to me, that today if you are not succeed in the markets, you can get a job. So if you have a formal education, right, you can try for 4 years, 5 years, 7 years. You have something to fall back on. एक और सवाल सर, ये पर्सनली And another thing, third thing I feel is that, see, formal education is very important, even if it does not help you on money, but because it gives you a personality. And that is what is, when you go to a gathering, when you meet people, what is education? It is the ability to understand, the necessity to be civil, to imbibe knowledge. So I think education is important. वहाँ पीछे तीसरा सवाल। गुड इवनिंग राकेश जी। एक मिनट। हेलो। इट्स नॉट ओके, जस्ट वन मोर क्वेश्चन। अगर ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करूं तो मेरे बच्चे या एटलीस्ट उनके बच्चे के बच्चे को रिटर्न मिलेगा? Stay away. ओके, No, nothing else. I'll say stay away. क्योंकि जब जो चीज 3 रुपए में बनती है, दूसरे लोग 2 रुपए में बनाते हैं और गवर्नमेंट अभी 6 रुपए में लेती है, आई डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। कल बोलेगी पैसा नहीं है। एक इंसान सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, दिल से विनती है, वहाँ पीछे का क्वेश्चन। गुड इवनिंग राकेश जी, मेरा आपसे सवाल है। बोलिए सवाल सुन रहे वो। मोदी जी के रेजिम के पहले हमने मनमोहन सिंह जी के 10 साल देखे हैं। उसमें एक समय ऐसा आया था कि हाई इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ, हाई सेंसेक्स, एक समय था। अभी मोदी जी आने के बाद अभी आज की जो परिस्थिति है, इन्फ्लेशन को कम रखने का प्रयास किया जा रहा है, ग्रोथ भी उस हिसाब से उतनी नहीं है जितनी सरकार की अपेक्षा है, और वही सेंसेक्स में कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस देश के लिए क्या फायदेमंद है, हाई इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ या लो इन्फ्लेशन एंड मेडिकल ग्रोथ? देखिए, 2003 से लेके 2006 तक इन्फ्लेशन बहुत लो था और ग्रोथ भी हाई थी। तो व्हाट इज दिस कंट्री नीड्स is low inflation and high growth, and we will get there.
because if you have high growth in high inflation, it is the poor who are the most deprived. The rich are very happy. सर कैसीनो इंडस्ट्री का क्या भविष्य है भारत में? भारत में कैसीनो इंडस्ट्री का क्या भविष्य है? अरे बहुत अच्छा है. दुनिया में अब लोग लड़ रहे हैं कैसीनो में खेलने में. भारत में भी वेरी बुलिश ऑन कैसीनोस. भारत में भी यही हाल होगा. क्यों नहीं होगा? भारत में घोड़े नहीं भागते हैं जी. भारत लोग भारतीय पिक्चर नहीं देखते हैं जी. भारतीय दारू नहीं पीते हैं जी. भारतीय खाने का शौक नहीं है. और एक कैसीनो तो अपने महाभारत में लिखा है. पूरी महाभारत कैसीनो से हुई थी. हेलो सर, मेरा नाम गोपाल शर्मा है. मैं नागपुर की स्टार्टअप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ. सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है मैं आफ्टर 20 years of experience I have a startup and I like when you said, you know, is it impacting your life, right? Startups, are they impacting your life? So we take that as a challenge and we think, you know, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे सबकी लाइफ इम्पैक्ट हो तो ही करना चाहिए. मेरा क्वेश्चन सर इसके वैल्यूएशंस के बारे में, if you can throw, I mean, if you can share your thoughts on startups valuation. I think they're extremely overvalued. In the sense that if there are 10,000 startups, maybe 2 startups may give extraordinary returns. But the price at which people are putting in money, the risk-reward ratio is not in favor of the investor. And second thing is, these startups are in constant need of money. वो हर दिन कौन पैसा देगा? I don't understand. See, you have money for 6 months, 1 year. मेरे ब्रदर के लड़के का स्टार्टअप है, और 9 महीने में आ जाते हैं. चाचा लास्ट 2 crores. अरे मैं बोला अभी तेरा कभी लास्ट होने वाला है. सो क्वेश्चन इज वेयर इज आई विल ब्रेक इवन नाउ नेक्स्ट मंथ. वो नेक्स्ट मंथ आता ही नहीं है. सो क्वेश्चन इज दैट इट्स माई ओपिनियन. आई डोंट वॉन्ट टू कॉज a problem in anybody's dreams or ambitions or entrepreneurship, but I have to say reality as I see it, and I reserve the right to be wrong. And in spite of my opinion, lots more of y'all will be far more successful than even you envisage. Is my good wishes. यहाँ से एक सवाल. वहां से कंट्रोल हो रहा ना सर. हॅलो तिकडच्यानंतर इकडे घेशील. माइक इज नॉट वर्किंग. चेक करो अभिषेक. यहाँ से तब तक अगर क्वेश्चन है तो. Good evening, sir. Welcome to Nagpur. I am Hemant. Hello. Welcome to Nagpur. This is Hemant. There have been some programs earlier also. People have told that from 1 year to other year, that is 2008 to 2009, Sensex was low at so and so point, and then high was at so and so point. So they gave a list of 10 years, right? But then one sees that there is a high and low. But I want to stress that nobody has said that there is a point-to-point change. What is your question, sir? संक्षिप्त में सवाल पूछिए. सिर्फ सवाल. है 2008 में पहले 19,000 तक सेंसेक्स गया था और वो आया था 7,000 में. पर वो जो डाटा दिखाता है वैसा दिखाता नहीं. वो बोलता है कि 4,000 पॉइंट का ही सिर्फ फर्क आया. जो आपने जिसका डाटा लिया है उसको क्वेश्चन करो. गलत डाटा लिया होगा. हाँ, गलत डाटा दिया है. यही मैं बोलना चाहता हूँ. यहाँ से इस सवाल. इज इट नहीं सुनाई दे रहा है. Good evening, sir. This is Riddhi Vasani. I'm a CS student. Well, initially you said that market hasn't made any sort of mistake. Like while investing, we have made a mistake. So how come we have made a mistake? Like it's not up to you. I want to say over a period of time. Okay. See, markets they go far below fair price, and they go far above fair price. Okay. Right? We invest somewhere in between.
Yeah. Now suppose I invest in a stock. Okay. Now the stock doesn't go for 5 years. Right? Then should I say that the market is wrong or I am wrong? It's like, how does it matter? I mean, it doesn't depend up to us, right? No, but it depends on us, no, because we chose the stock, no? Okay. पिताजी ने तो नहीं शादी की, अपन ने करी ना. तो हमने हमारे what I want to express is, I don't say market is always right in the short run. But when I do an act in the market, over a reasonable period of time, it has to be right or wrong. If the market moves in a manner which is contrary to my act, then at some point I must admit I'm wrong. That's what I meant to say. In the short run, market may be wrong. You know what Warren Buffett said, no? In the short run, the market is a voting machine. In the long run, it's a weighing machine. हेलो, आखिरी के 2 सवाल इस तरफ से एक गुड लीजिए. इवनिंग सर. मैं पराग हूँ और आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ. और जैसे सर सब लोग जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है, उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे ट्रेडर भी है सर. तो हमारे जैसे यंग ट्रेडर्स के लिए कोई बुक्स या कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे जिसको हम फॉलो करें? एक ही एडवाइस है, खुद के पैसे से सट्टा करो, ससुर न फ्रेंड या पिताजी के नहीं. दूसरा चीज, नो व्हाट टू से देख, 2 ही घोड़े अपने शेयर बाजार में 2 ही घोड़े भागते हैं, तेजी या मंदी. तो ज्यादा एक्सपर्ट मत बनो, हैव ब्रॉड आइडिया, नो व्हाट टू स्टेक एंड नो व्हेन टू टेक अ लॉस. आदमी ये कर सकेगा तो कमाएगा सट्टे में. बट बहुत विभुत्र चीज है, बहुत क्या यूनिक चीज है ये. ना करो तो ज्यादा खुश रहोगे. हेलो, जो सवाल जब भी पूछ नहीं पा रहे थे वहां चले जाइए अभिषेक. हाँ, सिर्फ 2 सवाल नहीं लेंगे आप. सवाल सर इज देयर, सो आप सवाल पूछिए प्लीज. सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसा आपने बोला कि यू हैव सीन लॉट ऑफ सक्सेस, एट द सेम टाइम यू हैव सीन लॉट ऑफ फेल्यूर ऑल्सो. जैसे यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने पिछले 2 साल में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अभी जो उनकी मेंटालिटी है सर, तो इस मेंटालिटी से उभर के लॉन्ग टर्म में मार्केट में बचे रहने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे सर? बाजार में रहो. देखो, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है सबसे पहले आपका एक्सपेक्टेशन. ये बाजार आपको 1.5 से 1.25% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न नहीं देने वाला. तो ये एक्सपेक्टेशन से ही इन्वेस्ट करिए. अच्छे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए और सिप से इन्वेस्ट करिए, जो कि आप हर लेवल ऑफ मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे. तो ना आपने नीचे में किया, ना ऊपर में किया, ना आपने टिप्स पे किया. That is the best way to get the return, and return can be 15 to 21% over period of time. एक चीज आपको लिख के देता हूं कि आपका लाइव LIC, ना बैंक डिपॉजिट, ना PPF, उससे सब ज्यादा रिटर्न आएगा. बट जो पैसा सिप्स में डालते हो, आप बोले ना मैं ये पॉलिसी ले रहा हूं मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो ऐसे सिप्स डालिए, ये मेरा बच्चा जब पढ़ेगा मैं निकालूंगा, या जब मेरे बेटी की शादी होगी जब निकालूंगा, जब घर बनाऊंगा जब निकालूंगा. ऐसे इक्विटी के सिप्स डालिए. हेलो सर, हम यहाँ पे आपसे सिप बताएंगे, ये तो सबको ही बताता है. राकेश झुनझुनवाला से ये एक्सपेक्ट नहीं करते सर. लेकिन क्या करे भाई, सच्चाई महक आती नहीं कागज के फूलों से. कुछ भी ठोक दूंगा यहाँ पे, कल पैसे लग जाएंगे तो खुश रहोगे. बोले आओ चलो फटाफट करते अपन, आ जा दे फटाफट, ले फटाफट, सब चालू हो जाओ. कल LIC में जाके 9:15 बजे क्या देना क्या बेचने का. तो ऐसे अपन को झुमरी थले भेजेंगे. Good evening, sir. This is Parul Arya. I'm standing here. Sir, I'm an English teacher and I would like to tell you 2 to 3 things. I really understood that you told me and you told everybody here that we should invest from our own earned money. Right? I understood. I'm an English teacher. I am sure that 15 of my students must be sitting over here listening to you. Some different kind of energy, I don't know what, helped me. It's 1 week ago, I have heard about you. I'm not afraid to say in front of a huge crowd who are coming here and listening to you. 1 हफ्ते पहले मैं आपके बारे में जानती भी नहीं थी. मैंने स्कूप पे आपका आर्टिकल पढ़ा था और तब मैंने बहुत अग्रेसिवली ये चीज सुना था कि मैं राकेश सर से एक बार मिलना चाहूंगी. और 1 हफ्ते पहले कहीं पर नहीं लिखा था कि आप नागपुर आएंगे. कल मैं सिर्फ वर्धमान नगर की ओर जा रही थी और बैनर देखा मैंने, और मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ और आपसे सवाल पूछ रही हूँ. टचवुड समथिंग इज हेल्पिंग मी आउट. ओके, अब आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मल एजुकेशन की बात की थी
निर्जा मैम ने भी इस बारे में बात की. आई एम एन MA पोस्ट ग्रेजुएट. आई हैव नो नॉलेज ऑफ CA और समथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग्स, बट क्यूरियोसिटी एक है और प्रैक्टिकलिटी को भी मैटर करती हूँ मैं, ठीक है. तो क्या एक ऐसी बंदी जो इस बैकग्राउंड को बिल्कुल बिलोंग नहीं करती है, अगर वो सीखने की चाह रखती है, शी हैज एन अर्ज टू लर्न, वो इस चीज में आगे जा सकती है? इनकी इंस्टीट्यूट है ना. Sir, I'm surely gonna join their institute as well, but it is a risk. Everybody is telling me no, but I am a person who follows the will. I'm not. फॉलो योर विल पारुल. मैं शेयर बाजार में जाने वाला तो सबने ना बोला. मैंने बोला ना, मम्मी ने तो बोला कोई शादी नहीं करेगा तेरे से. 27 साल का हो गया, पहले CA में लेट किया तूने, लड़की कौन देगा CA के बिना. और फिर शेयर बाजार में जाएगा तो कौन शादी करेगा. बोला ठीक है मम्मी, नहीं करने दो. तो खुद के पैसे से कर रही है तो कर, किसका सुन मत. नेक्स्ट क्वेश्चन. नमस्ते सर, मैं जय कुमार. कुछ दिन पहले ब्रेकिंग न्यूज थी, राकेश झुनझुनवाला बाय जेट एयरवेज एट द रेट ऑफ 420. तब से कोई न्यूज नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ जेट एयरवेज आपने क्यों खरीदा? इतने घाटे में कंपनी है, फिर भी डेप ज्यादा है. एक्चुअली क्या है, मेरी बीवी ने मुझे बोला था, वो भी है नहीं. फोन करके तेरे को बताऊंगा, मुझसे पूछ के. अगला क्वेश्चन. Hello, sir. Sir, my name is Karan, and sir, I want to ask that options is a good way to trade, or is it highly risky? नो ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि देयर इज अ बायर एंड सेलर ऑफ ऑप्शंस. नो Yes, sir. तो बोलते हैं लगाने वाले की जेब खाली, खाने वाले की तिजोरी खाली. लगाने वाले की जेब खाली और खाने वाले की तिजोरी खाली. क्योंकि जो लगाता है वो तो उसकी 50 बार लगाता है तो 2 बार सक्सीड करता है. जो खाता है वो समझता है रोज का पैसा है, चलो घर में ले जाओ. फिर एक दिन मालूम पड़ा 50 दिन का ब्याज के साथ गया. तो इट्स अ गुड MC. एवरीथिंग इज गुड एंड बैड इन व्हाट फॉर्म इट इज. कि भाई आप क्या करते हो, खरीदते ही जाते हो, बेचते ही जाते हो, और यू आर हैविंग सम थियरी, यू आर हैविंग सम स्ट्रेटजी. If you are a good trader, it's a good thing. Sir, I have read a lot about Jess Livermore, who was an American trader, and sir, whatever he has said, is that relevant in today's market also or not? Yeah, in ways it is relevant. Markets like human nature have not changed in the last 500 years. And no amount of automation, because you are basically governed by greed and fear. Yes, sir. And sir, one So they are. It is important what he said, but what he said is not all the almighty truth. एक ही सवाल, आखिरी के 4 सवाल. गाइस ये माइक जो सर्कुलेट कर रहे हैं, प्लीज बी रेडी. हेलो सर, जनरली देखा गया है कि मार्केट के अंदर शेयर लेने के बाद अगर वो नीचे आता है तो लोग एवरेजिंग करते हैं. आपके हिसाब से एवरेजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Well, it depends. If you are doing a trade, never average. Or trade is never averaged. मेरी वाइफ ने मेरे को बोला एक दिन, आप ये सट्टा करते हुए समझाओ तो ये क्या होता है. मैं बोला देखो, टाटा स्टील में तेजी लगती है, 100 के भाव में लेता हूँ, भाव 103 होता है तो और लेता हूँ. बोली कुछ बदला क्या? मैं बोला नहीं. बोले 98 होगा तो क्या होगा? मैं बोला बेच दूंगा. कुछ बदला क्या? मैं बोला नहीं. तो भाव का सट्टा ये होता है कि વધારે વધારે લેવાનો, ગતારે ગતારે વેચવાનો. तो ट्रेडिंग में कभी एवरेजिंग नहीं करने का, बिकॉज ट्रेडिंग इज मोमेंटम, राइट. इन्वेस्टमेंट में आई थिंक यू कैन एवरेज. व्हाट इज रॉन्ग? आई डू एवरेज समटाइम्स. Sir, since last 30 years, DICGC cover given by Reserve Bank of India, present limit is 1 lakh rupees. I presume that it must be increased to 10 lakhs rupees. DICGC cover. Deposit insurance and credit guarantee Of the banks? Yes. Don't worry, no bank in India is going to fail. If they fail, all will fail together, none will fail. So 1 lakh also doesn't matter, 10 lakh also doesn't matter. That's my opinion. Second question, a lot of Ponzi schemes are still continued in the market. For example, online lottery business. Why government is not banning that? Question is, I also know about a lot of Ponzi schemes. I don't go there. Why are you blaming the government? Blame yourself. कोई तुमको 3% ब्याज देता है, महीने का देता कहां से है? आप समझे ना. Don't blame the government, blame yourself. मैं तो जाके नहीं देता हूं.
बोले 1 लाख करोड़ दियो, महीने में 3 लाख दूंगा, मालूम पड़ा 6 इंस्टॉलमेंट आएंगे, फिर बाय बाय टाटा. So you also look within yourself, no? Sir, that what are you doing? सर गुड इवनिंग सर सर. अभी आपने कहा सर कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको नॉलेज नहीं है. अभी जैसे मुझे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है और मैं डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी उतरना चाहता हूं, तो एक नए इन्वेस्टर को कितने % में आपका अपना मनी डिवाइड करना चाहिए थ्रू म्यूचुअल फंड एंड थ्रू डायरेक्ट 95% mutual fund, 5% yourself. ओके सर, थैंक यू. Next question. Sir, I am Rajesh Lahoti. Sir, you have seen so many budgets, and after 7 days, exactly 7 days, Modi government is coming out with our budget. So, what are your views on this budget, and how do you see market? How will it react? See, I don't have views on budgets. I have view on expectations. My experience is that is there is a lot of expectation of budgets, then market goes up before budget and down afterwards. So you judge the sentiment of the market on Friday. If it is very bullish, then I feel Friday market will go down. Right? But I feel the budget will be good, markets will react well to it. नमस्कार नमस्कार. माइक चालू करून द्या. चेक चेक. सर नमस्कार, मेरा नाम जयंत जोशी है. मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल ये है, बोलिए ना, कि आपने बताया कि जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उन्होंने म्यूचुअल फंड का सहारा लेना चाहिए. राइट. और अभी आपने दूसरी जिक्र ये किया कि उन्होंने सिप के थ्रू जाना चाहिए. कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि सिप से अच्छा यदि आप म्यूचुअल फंड जब मार्केट लो है तब एक मुश्त में पैसा लगा दें तो दैट वुड बी बेनिफिशियल. और यदि ऐसा है तो सच है क्या? बट जोशी जी, उसमें एक प्रॉब्लम होती है ना सर, कि बाजार गया 9,100 का बाजार जब 8,300 हुआ तो बहुत लोगों को लगा अब तो बाजार 10% घट गया, अभी तक ले लो. उन्होंने ले लिया, फिर बाजार हो गया 7,500. फिर लोगों ने बोला ये क्या घटेगा, तो घटेगा ही नहीं, तो उन्होंने जब ले लिया, फिर बाजार हो गया 6,800, जब पैसा ही नहीं था लेने को. तो सच्चाई ये है कि ये ऊपर क्या है और नीचे क्या है बहुत मुश्किल है मालूम करना. तो क्या होता है कि आप सिप्स में डालते हो ऑल द टाइम, हर मंथ में डालते हो, तो यू पुट एट इक्वल वैल्यू ऑफ द मार्केट विदाउट जजमेंट. और मैंने उसके साथ एक चीज भी समझाई कि इस बाजार में 15 से 21% से ज्यादा रिटर्न आना बहुत 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 मुश्किल है. तो वो रिटर्न चाहिए तो इस बाजार में आइए, नहीं तो घर में अच्छे दाल चावल खाइए और मजा करिए. Good evening, sir. From here. Hello, sir. Sir, I'm Poonam Khandelwal. I'm also chartered accountant. You said about changes in labor laws are required, and all the students here obviously would want to know what type of changes can affect the economy. What specific? Well, you can't fire. Why do you think the cotton textile industry in Bombay went sick? Because you can't discharge the labor. I don't say the mill owners were made out of gold. But the fact is that if I cannot, business goes through ups and downs. If I cannot discharge labor when I don't have orders, then why will I hire anybody? And you say I will get contract labor. I'm not going to take contract labor. I want to train the person. I want to make him permanent. Then I have got thousands of welfare provisions. Nobody follows them. Still they are there. So there are so many changes which have to be made in labor laws. A company employing more than 100 workers cannot be closed without permission of the state government. Why? I think to protect the job of 10 million people in the organized sector, we are leaving employment generation of 10 million people every year to the dogs. We have to change these labor laws. So you mean liberalization, a liberal approach? A liberalization in all aspects. You know, I mean, you see the law, you see the infrastructure. Why do you think is labor law applicable to the software industry, which has been the highest growth industry in this country in the last 2 decades? Software, is there any labor law there? There is free hire and fire.
It is all thinking of that. You think of it, it's a joke. The communists are against capital. And the biggest symbol of capitalism is interest. And they want high interest. कम्युनिस्ट को तो ब्याज खाना ही नहीं चाहिए, उसके लिए हराम है. So this protective thought will give us permanent prosperity. I think is the biggest. God bless Mr. Nehru and his socialism, but it is affecting all of us. Sir, one last question. एक लास्ट क्वेश्चन तिकडून देतोय ते ठीक है, तो घे मग मी. माइक. हेलो सर, मैं भी पूनम मैम का स्टूडेंट हूँ, CIPCC में हूँ. सिर्फ एक स्टॉक मार्केट का इतना नॉलेज नहीं है, बस आज मैम ने बोला कि कंपलसरी आज आओ और अटेंड करो, देखो कितना समझता है. और एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि आपने हिंदुइज्म में बहुत बात की और वो मुझे बहुत पसंद आई. तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि आप इतने सक्सेसफुल हुए हो, उसमें आपका ट्रस्ट और आपका जो बचपन से लेके यहाँ तक का जो जितने भी आप पे संस्कार हुए, उसका कितना फायदा हुआ है, जितने तुम यहाँ पे सक्सेस आपको मिला है उसमें. पहली चीज तो मैं बोलता हूँ, आज तो मैडम ने बोला यहाँ आने को. अब तेरी तो उम्र है, मम्मी बोलेगी लड़की से मिल ले, क्या करेगा? नहीं बोलेगा नहीं जाऊंगा मम्मी. हाँ, देखिए संस्कार तो भगवान और माँ बाप बनाने वाले हैं. मेरे को लगता है कि जो संस्कार मेरे पिताजी और मम्मी ने मुझे सिखाए, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे बनने में जो भी मैं कुछ हूं. क्योंकि संस्कार से ही आदमी व्यापार में आदमी व्यापार में क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, उससे संस्कारों से ही सीखेगा. तो मेरे को लगता है कि मेरे माँ बाप ने बड़ा किया, जो तरीके से बड़ा किया, जो हिसाब से मैं बहुत क्यूरियस बच्चा था. मेरे फादर मेरा हर क्वेश्चन आंसर करते थे. जो मेरे फादर ने सिखाया कि भाई सही काम करो. आप समझे ना, मेरी मम्मी का जो आशीर्वाद था, मम्मी बोले तकलीफ हो तो भी कहाँ जाके, आज मेरे पिताजी नहीं रहे, मैं हमेशा उनके साथ रहता था. भले कितना पैसा कमाया मैंने, मेरे माँ बाप के साथ रहता था और अब अभी भी मेरी माँ के साथ रहता हूँ. तो कुछ भी तकलीफ हो तो पिताजी थे ना बोलने. जिस दिन पिताजी नहीं रहे, एक्चुअली अभी मैं 56 साल का हूँ, उनके 49 साल की उम्र में मैं घर में सबसे छोटा हूँ. तो पिताजी नहीं रहने से कैसा अकेलापन रहता. तो उनके संस्कार जो थे, जो उन्होंने सिखाए, they played a very 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 important role in my life, and I will always remain grateful to them. Sir, on the last note, one is Sensex 40,000 कब जाएगा? देख, मैंने ऐश्वर्या राय को बोला है डेट पे आने के लिए, अभी मैसेज भेजाई, उसी लिए देख रहा था आंसर आया क्या. लेकिन क्या है, आएगी वो डेट पे, लेकिन कब आएगी मालूम नहीं है. बट मेरे को लगता है 2020 के पहले आ जाना चाहिए. उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है. सर, आपका आज का एक्सपीरियंस और आपका अनुभव कैसा था, अगर आप बता दें, नागपुर के निवेशकों की. वेल, आई थिंक बहुत अच्छा तो लोगों को नहीं लगा होगा, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशन था. मैंने तो बिल्कुल बोला सिर्फ में पैसा डालो, अच्छे म्यूचुअल फंड में डालो. और आपको फीलिंग भी हुई कि भाई राकेश ने बोला, ये थोड़ा कोई बोलने आया था. लेकिन दुनिया की जो सच्चाई है वो तो जैसे मैंने देखी है वैसे ही मैं बताऊंगा. मुझे बहुत अच्छा लगा. नागपुर बहुत साफ सुथरी सिटी लगी है. ब्रॉड रोड से अभी तक जो देखे हैं, अच्छी कचौड़ी खिलाई इन्होंने, आज समझे ना. एंड नागपुर इज अ ग्रेट सिटी ऑफ लर्निंग ऑल्सो. सो गुड, थैंक यू.